Guys, this is Zoologist AK, and in this video we are going to talk about RNA, in which we will study about structure and versatility of RNA and different types of property of RNA like an enzyme, or how does this RNA regulate its replication and how does it perform a regulatory function or as a regulatory RNA molecule, and different types of RNA like transfer RNA, messenger RNA, small nuclear RNA. So in this video we will going to talk about ribonucleic acid, that is RNA. In this video I am going to talk about these points. First is structure and versatility of RNA, in which we will talk about different types of structure, how does it form pseudonodes, how does it form secondary structure, tertiary structure. We will talk about different types of structure that is formed by RNA by base pairing with itself, and then directed evolution select RNA that binds small molecule, how does evolution select RNA, and then properties of RNA as I talked before, like how does this RNA behave like an enzyme as a regulatory molecule, or how does it regulate its own replication, and different types of RNA. As we know, RNA are many types like small nuclear RNA, interference RNA, messenger RNA, transfer RNA. Some are coding RNAs that play a role in coding the information during protein synthesis like messenger RNA. Some are non-coding RNAs or form structure of cell. So we are going to talk about all these points in this video. In case of structure and versatility of RNA, I am going to talk about RNA that contain as ribose sugar and uracil, that is a nitrogenous base and is usually single stranded structure and perform as a genome in some viruses like Tomacoviridae virus. And second is RNA chain fold back on themselves to form local regions of double helix similar to A form DNA, where normally the DNA that found in our cells is B form. So RNA form a structure that is similar to A form of DNA. And third is RNA can fold up into complex tertiary structure, and how does it, and what are the properties and what are the function performed by tertiary structure, how does it created. We will going to study all these points in this video. And last point is nucleotide substitution in combination with chemical probing predict RNA structure. So in this structure and versatility of RNA I am going to discuss all these points. RNA सिंगल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल होता है, पर जो इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयर के थ्रू ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेता है और फोल्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से ये डाइवर्स टाइप के टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं, ये किए जाते हैं नॉन क्लासिकल बेस पेयर के थ्रू. नॉन क्लासिकल बेस पेयर मीन्स जो वर्स्टन एंड क्रिक ने बेस पेयरिंग मेथड दिया था कि भाई एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो उस बेस पेयरिंग को ना फॉलो करके ये नॉन क्लासिकल बेस पेयर के थ्रू अपने आप फोल्डिंग कर जाता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और डिफरेंट टाइप्स के टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, और विद द हेल्प ऑफ बेस बैक बोन इंट्रैक्शन के थ्रू ये होता है, और नोट लाइक कॉन्फिगरेशन फॉर्म कर देता है. बेस बैक बोन इंट्रैक्शन मीन्स कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो अपनी बैक बोन के साथ ही कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉन्फिगरेशन क्रिएट होती हैं. Now come to our main point, that is RNA contains ribose. Ribose is a sugar and uracil, that is a nitrogenous base and usually single stranded. So let us understand the difference between DNA एंड RNA. जो RNA होता है वो DNA से 3 एस्पेक्ट्स में डिफर करता है. फर्स्ट होता है कि जो RNA की बैकबोन होती है उसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, पर जो DNA होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है. तो क्या डिफरेंस है? जो राइबोस होती है उसके सेकंड जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि रेड कलर में शो किया गया है, पर यहाँ पे अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती तो वो कैसे होती? यहाँ पे H होता, यहाँ पे OH, यहाँ पे H H H OH H OH, और यहाँ पे होता है CH2OH और H. ये जो मैंने यहाँ पे पिक डायग्राम बनाया है ये है हमारा डीऑक्सी राइबोस का. तो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एब्सेंट है. तो मेन डिफरेंस राइबोस में
और डीऑक्सीराइबोज में क्या है कि जो राइबोज शुगर है उसमें सेकंड जो कार्बन होता है, सेकंड पोजीशन जो होती है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो है यूरेसिल का, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थायमिन। दोनों ही सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, पर मेन डिफरेंस क्या है, जो थायमिन होता है उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिफ्थ पोजीशन पे, पर यहाँ पे यूरेसिल में एज यू कैन सी हेयर इज नो मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है। और जो देन एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई हैज़ इवोल्यूशन सेलेक्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप इन डीएनए, जबकि आरएनए में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से भी वो कुछ वायरसेस में एज ए जीनोम एक्ट करता है, और वायरसेस कितने जल्दी म्यूटेट करते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं, और वो कितने मीन्स वो कितने टाइप्स की डिजीज क्रिएट करते हैं। तो वाई डज इवोल्यूशन हैज सेलेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप इन केस ऑफ डीएनए। सो जो साइटोसिन होता है, जैसे कि तो इस बात को समझने से पहले हम अपने डीएमिनेशन वाले एग्जाम्पल को रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि जो साइटोसिन है वो यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, जिसमें जो हमारा अमाइन ग्रुप है साइटोसिन से वो रिमूव कर दिया जाता है एज ए अमोनिया, है ना, और जिसकी वजह से जो यूरेसिल है वो फॉर्म होता है। पर जो रिपेयर मशीनरी होती है डीएनए में, वो यूरेसिल को एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल डिटेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो क्या कर देती है, रिस्टोर कर देती है यूरेसिल से दोबारा साइटोसिन को। बट ये माना जा रहा है कि जो आरएनए है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो वो यूरेसिल कैसे अराइज हुआ होगा, वो अराइज हुआ होगा साइटोसिन की डीएमिनेशन के थ्रू। जो अनडिटेक्टेड मतलब जो सर्विलेंस मशीनरी है, जो रिपेयर मशीनरी है जीनोम में, उसके थ्रू वो अनडिटेक्टेड रह गया होगा, जिसकी वजह से वो मेंटेन रह गया होगा जीनोम में। इसीलिए जो हमारा डीएनए है उसमें हमारा एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है थायमिन के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए का। थर्ड डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में, वो ये है कि आरएनए फाइंड होता है एज ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बट जो डीएनए होता है वो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्म में मिलता है। बट आरएनए एक एक्सेप्शनल है कुछ वायरसेस में, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरसेस और एचआईवी वायरस, दैट इज रेट्रोवायरस। तो जब हमारा आरएनए जो है वो इतना डिफर करता है डीएनए मॉलिक्यूल से, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस आरएनए मॉलिक्यूल इनसाइड ए सेल। तो आरएनए कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब मेनली, और कहीं तो मेजर रोल में देखें तो हम आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्ले नहीं करता है अपना रोल, बल्कि वो क्या है, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है या फिर इंफॉर्मेशन को कोड करने में रोल प्ले करता है। बट कुछ वायरसेस में, एक्सेप्शनल वायरसेस में, जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, टीएमवी की बात की, एचआईवी वायरस की बात की, तो वहाँ पे वो एज ए जीनोम का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो जो आरएनए होता है वो एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम करता है, जैसे मैसेंजर आरएनए होता है जीन के बीच में और ट्रांसलेशन मशीनरी के बीच में, वो क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। दूसरा फंक्शन है आरएनए का, वो है अडेप्टर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अडेप्टर मीन्स लाइक ए ट्रांसफर आरएनए, जो कोडोन के बीच में इन द एमआरएनए, जो कोडोन प्रेजेंट है एमआरएनए के, उनके बीच में अमीनो एसिड के बीच में क्या काम करता है, अडेप्टर का काम करता है। और फिर है जो आरएनए है वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है सेल कंपोनेंट्स में, जैसे राइबोसोम है वहाँ पे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सो RNA play a role of regulatory molecules also, which through sequence complementary binds to interfere with the translation of mRNA. So there are different functions of RNA inside a cell. Let us come on our second point, that is RNA chains fold back on themselves to form a local region of double helix similar to A form DNA. So let's learn how does this RNA chain fold back on themselves. As you can see here in this picture, यहाँ पे क्या हो रखा है, RNA एक डबल हेलिकल कैरेक्टर शो कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो RNA चेन है वो फ्रीक्वेंटली फोल्ड हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप ही, और अपनी ही चेन के साथ बेस पेयरिंग करके बिट और कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के बीच में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोसिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट, साइटोसिन ग्वानिन, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन, तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट हैं जो चेन में, वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर फोल्ड हो गए हैं और उन्होंने क्या कर लिया, शॉर्ट स्ट्रेच क्रिएट कर दिए हैं, बेस पेयर करके बेस पेयर सेगमेंट फॉर्म कर दिए हैं, और कहीं तो शॉर्ट स्ट्रेच फॉर्म कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेच क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेच क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यहाँ पे क्रिएट हुए थे, डिफरेंट टाइप्स के शॉर्ट स्ट्रेच क्रिएट कर दिए हैं।
अगर दो स्ट्रेच हैं कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के, वे एक दूसरे के पास में लाई करते हैं तो आरएनए एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, जो कि इस पिक्चर में शो किया गया है। एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो जो इंटरवीनिंग आरएनए होता है, जब एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसमें वो आरएनए लूप्ड आउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये लूपिंग फॉर्म हो रखी है, ये लूप आउट हो रखा है, ये वो लूपिंग है उन बेस पेयर और उन सीक्वेंस के थ्रू ये लूपिंग की गई है जो अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंटरनल लूपिंग तब फॉर्म होती है जब अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड ऑफ स्टेम। जो यहाँ पे जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म किया उसके दोनों साइड ही जब अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं इंटरनल लूप फॉर्म होता है। एक साइड में अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते तो बल्ज फॉर्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर पिन स्ट्रक्चर, जंक्शन, ये सब फॉर्म किए जाते हैं हमारे स्टेम लूप स्ट्रक्चर में, जो कि तब फॉर्म होता है जब आरएनए चेन में जो सीक्वेंस प्रेजेंट हैं वो अपने ही चेन के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ बेस पेयर करके एक लूप और स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। और जहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं होते वहाँ पे वो लूप क्रिएट कर देते हैं, और जहाँ पे बेस पेयरिंग होती है वहाँ पे वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट स्टेम लूप स्ट्रक्चर। तो क्या स्टेबिलिटी है ऐसे स्टेम लूप स्ट्रक्चर की? ये जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर है वो इन्हेंस्ड करे जाते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो लूप के अंदर ही पाई जाती हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस stability of stem loop structure that is formed in here, we need to understand how we need to understand another example, or we need to take another example, that is tetra loop. tetra means 4, तो वहाँ पे tetra loop फॉर्म हो रहे हैं और टेट्रा लूप सीक्वेंस है। टेट्रा लूप सीक्वेंस है तो वहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, यूरेसिल एंड ग्वानिन। तो ये जो टेट्रा लूप है इसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है UG एंड G। तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, जिसमें यहाँ पे रेड डॉट है ये हाइड्रोजन बेस पेयरिंग शो कर रही है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, एंड ये जो ग्रे कलर में स्टैकिंग इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो जो स्टेबिलिटी है इन स्ट्रक्चर्स में, जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं, स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू आरएनए में, ये स्टेबलाइज किए जाते हैं इन स्टैकिंग इंटरेक्शन के थ्रू। ये स्टैकिंग इंटरेक्शन जो सबसे पहले स्टडी किया था वो मार्मर और ड्यूटी ने किया था। मार्मर एंड डोटी ने किया था स्टडी। इनको फर्स्ट टाइम उन्होंने ये स्टडी की थी कि लीनियर रिलेशनशिप होती है ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, जो रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में किसी भी जीनोम की। और यहाँ पे जो ग्वानिन एंड साइटोसिन हैं वो स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे कितनी स्टेबल जो डीनेचरेशन है वो कितनी होती है इन केस ऑफ एन जीनोम। तो यहाँ पे जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था और उसकी क्लासिकल स्टडी की थी वो मार्मर एंड डोटी ने की थी। और जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है और कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंटरेक्शन होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंटरेक्शन होता है, मान लो ये यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे ये फॉस्फेट प्रेजेंट है, फिर शुगर प्रेजेंट है, फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो शुगर वाली चेन से यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। तो यहाँ पे मान लो एडेनिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अगर हमारा साइटोसिन प्रेजेंट तो यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो एडेनिन और यूरेसिल के बीच में 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, ये है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बट जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है कि साइटोसिन फिर यूरेसिल फिर एडेनिन फिर ग्वानिन, तो ये जो इंटरेक्शन है ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन कहलाता है। और ये जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है इसका मतलब है अरेंज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सो जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो बेस पेयर है नाइट्रोजनस बेस पेयर वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्टैक ऑन होते हैं, मीन्स अरेंज्ड होते हैं वन ऑन द अनदर। तो जो स्टेबिलिटी है डुप्लेक्स की न्यूक्लिक एसिड में वो इंटरेक्शन के बीच में होती है, जो रिजल्ट आउट किया जाता है बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के थ्रू। और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। और ये डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी पे बेसिस की, कि जैसे कि हमें पता है कि
हमारा जो यूरेसिल है वो हमारा सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है और हमारा जो ग्वानिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जिनकी एरोमेटिसिटी है बेसिस की वो भी डिपेंड करती है एंड उनकी जो डायपोल मोमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है ये हमारा बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन। और ये जो बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन है वो पार्शली इंटरस्ट्रैंड होता है, पार्शली इंट्रास्ट्रैंड होता है। इंटरस्ट्रैंड मीन्स एक ही स्ट्रैंड में और इंट्रास्ट्रैंड मीन्स दो स्ट्रैंड में और नेचर में। तो जो मेजर स्टैकिंग फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स और वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन। So there is another example of this RNA chain that is fold back on themselves to form local region of double helical structure। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का एक अनदर एग्जाम्पल है यहाँ पे इस पिक्चर में, ये है शूडो नोट। क्या है ये? शूडो नोट्स है that is formed by सीक्वेंसेस जो नॉन कॉन्टिग्वेंस सीक्वेंस होते हैं। नॉन कॉन्टिग्वेंस सीक्वेंस को समझने से पहले हम कॉन्टिग्वेंस सीक्वेंस को समझते हैं। कॉन्टिग जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टिग का मतलब ही होता है ओवरलैपिंग, मीन्स ओवरलैपिंग, और बॉटम अप मीन्स बॉटम अप सीक्वेंसिंग होती है। जैसे यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है, फिर यहाँ पे यूरेसिल है, एडेनिन है, ग्वानिन है। तो ये ओवरलैपिंग रीड्स के थ्रू और बॉटम सीक्वेंसिंग जो होती है इसको कॉन्टिग्यूस सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो जब ये नहीं प्रेजेंट होती तो वो नॉन कॉन्टिग्यूस सीक्वेंस होती है। तो नॉन कॉन्टिग सीक्वेंस की वजह से यहाँ पे शूडोनोट क्रिएट होते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे कि ए फॉर्म में होता है डीएनए के केस में, ऐसा ही होता है आरएनए के केस में। और ये किस वजह से होता है? ये एडिशनल नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयर के थ्रू होता है। जिसके हमें पता है वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग में होता है हमारा एडेनिन जो बेस पेयर करता है वो थायमिन के साथ करता है, और आरएनए के केस में वाटसन क्रिक एंड वॉटसन की बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग एडेनिन यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करता है, और जो साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। तो ये हमारी करेक्ट बेस पेयरिंग होती है। बट जो आरएनए में ये जो बेस पेयरिंग हो रही है जिसके थ्रू ये शूडोनोट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग है, जिसमें हमारा जो ग्वानिन है वो यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करता है और उसको एच बॉन्ड बोलते हैं। और ये कब क्रिएट होता है? जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया कि जब ग्वानिन का जो कार्बन हमारा यहाँ पे 6 कार्बन है ग्वानिन का, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो यूरेसिल के थर्ड नाइट्रोजन पे जाके बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो यहाँ पे यूरेसिल का जो कार्बन सेकंड है उसका कार्बोनिल ग्रुप ग्वानिन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ये यहाँ पे नॉन वाटसन क्रिक जो बेस पेयर होते हैं ये ओल्ड कॉम्बिनेशन में मिलते हैं आरएनए के, जहाँ पे ग्वानिन एडेनिन बेस पेयरिंग भी होती है, ग्वानिन यूरेसिल बेस पेयरिंग भी होती है। आर द मोस्ट और जो मोस्ट अबाउंडेंट है वो है राइबोसोमल आरएनए में के केस में, क्योंकि ये जो बेस पेयरिंग है ये एनहेंस करती है कैपेसिटी आरएनए की, ताकि वो सेल्फ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के थ्रू अपनी ही चेन के साथ बैक फोल्ड करके बेस पेयरिंग करके बैक फोल्ड कर जाए और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाए। तो ये जो जैसे कि हमने बात की है कि जो हमारा राइबोस शुगर होती है वहाँ पे ये सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो आरएनए है वो बी फॉर्म नहीं फॉर्म कर पाता, जैसे कि डीएनए के बी फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि सेल्स में मिलता है, जिसकी हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। अपनी 10th स्टैंडर्ड से स्टडी करने लग जाते हैं, 11th 12th में सब में हम जो मेनली स्टडी करते हैं वो बी फॉर्म जो हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो स्टडी करते हैं वो ना फॉर्म करके वो क्या फॉर्म करता है? ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो रिजेंबल करता है ए फॉर्म को। और इसमें क्या होता है? जो माइनर ग्रुव होता है वो वाइड होता है, शैलो होता है और असेसिबल होता है आरएनए का, जिसकी वजह से वो सीक्वेंस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है। और जो मेजर ग्रुव होता है वो नैरो होता है, डीप होता है और वो नॉट असेसिबल होता है, जिसकी नॉन असेसिबल टू अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से साइड चेन क्रिएट नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बात की कि जो माइनर ग्रुव होता है वो वाइड होता है, शैलो होता है, वो असेसिबल होता है विद डिफरेंट अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स जो सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर के साथ उस आरएनए चेन के साथ क्या कर जाते हैं? इंट्रैक्शन कर जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है प्रोटीन्स के जो आरएनए के साथ बाइंड करते हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में, जैसे ट्रांसफर आरएनए सिंथेटाइजेज होते हैं जो रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए के साथ बेस पेयरिंग कर जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट टॉक्सिन होते हैं जैसे राइसिन
राइसिन होता है जो क्लीव कर देता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, लूप जो बॉन्ड फॉर्म करके किसमें, सार्सिन लूप में और राइसिन लूप में, जो लार्ज आरएनए के थ्रू फॉर्म की जाती है, लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक राइबोसोम के। और ह्यूमन जो U1A प्रोटीन होता है वो क्या करता है, यू शेप्ड U1A के साथ पॉलीएडिनाइलेशन साइट पे बाइंड कर जाता है और इनहिबिट कर देता है डिफरेंट एलिमेंट्स की बाइंडिंग mRNA में, और ब्लॉक कर देता है पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शन और मैकेनिज्म जो कि हमारा 3 प्राइम एंड पे होता है, जिसमें अप्रोक्स 200 बेसिस होते हैं जो एडेनिन के नाइट्रोजनस बेस वो ऐड होते हैं, उसको इनहिबिट कर देता है। जो हमारा U1A होता है, U1 हेयर स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर RNPs, एडेनिन जो कि बाइंड हो जाता है 3 प्राइम साइड पे और वो पॉलीएडिनाइलेशन को इनहिबिट कर देता है और लिमिट कर देता है लेंथ किसकी, पॉली ए टेल की। और जो आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल फंक्शन में, क्योंकि बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वायरुलेंस जीन हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिफरेंट टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन केस ऑफ एनिमल्स। तो उसमें ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने बात की कि जो आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल फंक्शन में, जिसमें कि बहुत सारे जो वायरुलेंट जीन जो होते हैं वो केवल होस्ट में जाके ही एक्टिवेट होते हैं। तो वो होस्ट में ही क्यों एक्टिवेट होते हैं, क्या रीज़न है इसका एक्सप्रेशन का, तो जो ये वायरुलेंस जीन होते हैं ये होस्ट में इसी वजह से एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि वो इंड्यूस्ड करे जाते हैं एक स्टिमुलस के थ्रू। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो है टेम्परेचर, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के इनसाइड जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है इनसाइड ऑफ द बॉडी वो हाई होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेन स्टिमुलस है इन वायरुलेंस जीन को एक्टिवेट करने का वो है यहाँ पे टेम्परेचर। देन एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ इज दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर डिटेक्टेड बाय द पैथोजन एंड हाउ डज द थर्मोसेंसर एक्टिवेट वायरुलेंस जीन, और कैसे ये थर्मोसेंसर एक्टिवेट करता है वायरुलेंस जीन को। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक पैथोजन का एग्जांपल लेते हैं, डैट इज ए फूड बोर्न पैथोजन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे थर्मोसेंसर एक्टिवेटर का रोल। और यहाँ पे जो ये पैथोजन है इसमें एक जीन होता है रेगुलेटरी जीन PRFA, जिसका जो एक्टिवेशन है वो रेगुलेट किया जाता है ट्रांसलेशन लेवल पे। और वो कैसे एक्टिवेट किया जाता है रेगुलेट किया जाता है, वो किया जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट मैनर में। और कैसे किया जाता है, राइबोसोम जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे जो RBS से शो की गई है उसको अनमास्क करके। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। यहाँ पे जो ये फूड बोर्न जो पैथोजन है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में ही जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे HIV पेशेंट होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनमें ही ये क्या करता है, इलनेस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो वायरुलेंस जीन है L मोनोसाइटोजेंस में वो टर्न ऑन करा जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू, जो कि एक रेगुलेटरी जीन इनकोड करता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पे PRFA। तो इसका जो सिंथेसिस है वो कंट्रोल किया जाता है लेवल ऑफ ट्रांसलेशन पे एक अपस्ट्रीम रीजन के थ्रू जो mRNA में प्रेजेंट होता है, और उस अपस्ट्रीम रीजन में एक साइट होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है ये एक सीक्वेंस है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है राइबोसोम के थ्रू ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो जब ये जो अपस्ट्रीम रीजन है mRNA में जब ये फोल्ड अप हो जाता है अपने आप, तो एक टेम्परेचर सेंसिटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेम लूप टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है DNA का टेम्परेचर सेंसिटिव मैनर में। जब हमारा क्या है
जब डेट जो क्या कर देता है, मास्क कर देता है किसको, राइबोसोम बाइंडिंग साइट को, जिसकी वजह से जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो मास्क अप हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पे इनहिबिशन से शो किया गया है कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं कर पाता। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर लो होता है। तो जब बॉडी के आउटसाइड होगा ये वायरुलेंट जो पैथोजन है, तो ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है जो कि एमआरएनए में अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, वो एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी। और इस स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो कवर अप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो राइबोसोम है वो बाइंड नहीं कर पाएगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे, और ट्रांसलेशन क्या है वो रुक जाएगा। बट जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये ओपन अप हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, जिसकी वजह से राइबोसोम क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। और उसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको इनकोड करने वाला जीन PRFA वो एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वायरुलेंट जीन एक्सप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मास्किंग होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट की, जैसे कि यहाँ पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, इसमें मास्किंग हो रही है लो टेम्परेचर पे, तो ये मास्किंग होगी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे, और अनमास्किंग होगी अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि बॉडी के इनसाइड होती है। इसी वजह से ये ह्यूमंस में इम्यून कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करेगा और प्रेग्नेंट वुमेन्स को इन्फेक्ट करेगा, और तभी एक्टिवेट होगा जबकि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होगा, क्योंकि इसका जो स्टिमुलस एक्टिवेट करने का इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वो है यहाँ पे टेम्परेचर। और अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है, जिसकी वजह से जो राइबोसोम है वो सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे, और वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे बाइंड ना होके इनिशिएट नहीं कर पाएंगी ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा और वायलेंट जीन का जो एक्सप्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। Now come to our third point, that is RNA can fold up into complex tertiary structure। तो जैसे कि हम जानते हैं RNA जो है उसकी एनॉर्मस रोटेशनल फ्रीडम होती है। एक तो क्योंकि उसके जो सेकंड कार्बन होता है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा कि जो RNA है वो स्टेबलाइज कर दिया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड उसके साथ बाइंड होके उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसकी उसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको, या टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक नई कन्फर्मेशन क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो RNA है वो कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है। तो वो ऐसे फॉर्म करता है जैसे कि हमें पता है RNA में जो बेस पेयर जब है वहाँ पे फोस्फेट ग्रुप से बाइंड होते हैं, जहाँ पे जो फोस्फेट ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो चेन में बहुत सारे फोस्फेट जो प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिस्टेबलाइज कर दिए जाते हैं। बट जो प्रोटीन होता है वो इस नेगेटिव चार्ज को शील्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको स्टेबलाइज कर देता है। पर ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं होते, इनकी कैपेसिटी होती है स्विच करने की अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में। और इस स्विचिंग की जो एडवांटेज होती हैं बहुत सारी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारा सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि हम राइबो स्विच में पढ़ते हैं और mRNA में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इन म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस कैंसर क्रिएट करता है, जनरेट करता है माउस के केस में और अदर वर्टिब्रेट्स के केस में। Now come to our next point, that is nucleotide substitution in combination with chemical probing। प्रेडक्ट RNA स्ट्रक्चर की कैसे न्यूक्लियोटाइड का जो सब्सटीट्यूशन है अलोंग विथ केमिकल प्रोबिंग, जिसमें केमिकल्स प्रोब यूज़ किए जाते हैं, वो कैसे RNA के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है। यहाँ पे जो RNA के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो किए जाते हैं हेलिक्स बल्ज, लॉन्ग रेंज लूप स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। हेलिक्स बल्ज, लॉन्ग रेंज, लूप और टर्शरी स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन किए जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले प्रोब क्रिएट करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, जो mRNA मोलिक्यूल के क्रिएट करेंगे, और उनके साथ केमिकल्स भी यूज़ करेंगे। वो जो केमिकल यूज़ करेंगे वो जो अनपेयर्ड बेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर में यहाँ पे बल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो बल्स जब क्रिएट होते हैं तो वो अनपेयरिंग की वजह से होते हैं, जब बेस पेयर
अनपेयर्ड रह जाते हैं, तो वो केमिकल इन अनपेयर्ड बेसिस के साथ क्या कर लेते हैं, कम्बिनेशन कर लेते हैं और प्रोडक्ट करते हैं स्ट्रक्चर किसका, आरएनए का। कैसे, वो ये बताते हैं कि कहाँ पे स्टेकिंग इंट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पे अनपेयर्ड जो बेस पेयर है वो प्रेजेंट है। तो ये जो अप्रोच है वो अनरिलायबल है। फिर उसके बाद जो अप्रोच यूज़ किए गए हैं वो हैं एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। पर जो एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये सोल्व नहीं कर पाई आरएनए स्ट्रक्चर का इन मेथड्स के थ्रू। ये बहुत ही चैलेंजिंग है और एनएमआर को हम लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एनएमआर हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, जिसमें हम एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। तो उसको हम तब स्टडी करेंगे जब हम डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो भी यूज़ नहीं किया जाता टू डिटेक्ट दिस स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, बिकॉज वो अनरिलायबल है फॉर लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल्स। सो ना टू डिटेक्ट द आरएनए स्ट्रक्चर एक टेक्निक डेवलप की गई, एक स्ट्रेटेजी डेवलप की गई, दैट इज म्यूटेट एंड मैप स्ट्रेटेजी। म्यूटेट एंड मैप स्ट्रेटेजी कम्बिनेशन है म्यूटेशनल स्ट्रेटेजी का एंड केमिकल मॉडिफिकेशनल अप्रोच का। ये किसका कम्बिनेशन है, म्यूटेशनल अप्रोच का एंड केमिकल मॉडिफिकेशन का। तो इसमें क्या ये जो हमारी म्यूटेट एंड मैप स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक लाइब्रेरी क्रिएट की जाती है न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो रिप्लेस्ड किए जाते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ, जो एक आरएनए सिलेक्टेड आरएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो जब वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं तो आरएनए में क्या हो जाती है, म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है। तो जो म्यूटेंट आरएनए होता है, जो म्यूटेंट आरएनए फिर क्रिएट होता है, वो केमिकली मॉडिफाई किया जाता है शेप के थ्रू। शेप क्या है यहाँ पे, शेप के थ्रू वो केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पे शेप है सिलेक्टिव, एस स्टैंड फॉर सिलेक्टिव 2-हाइड्रोक्सिल, एस स्टैंड फॉर 2-हाइड्रोक्सिल, ए स्टैंड फॉर एसाइलेशन एनालाइज्ड by, P stand for primer, E stand for extension. So shape stand for selective 2-hydroxyl acylation analyzed by a primer extension. इसमें क्या किया जाता है, आरएनए को एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, और वो केमिकल रिएजेंट क्या है, एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्राइड। वो जो केमिकल है वो है एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्राइड। इसके थ्रू आरएनए को ट्रीट किया जाता है आफ्टर म्यूटेशन। तो हमने अभी तक समझा कि जो म्यूटेट एंड मैप स्ट्रेटजी है, इसमें सबसे पहले आरएनए न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन लाइब्रेरी क्रिएट की जाती है, जिसमें जो आरएनए सीक्वेंस हमने सेलेक्ट किया है उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को एक्सचेंज किया जाता है और कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। तो वहाँ पे आरएनए म्यूटेंट जनरेट होता है। जब वो आरएनए म्यूटेंट जनरेट हो जाता है तो शेप एक केमिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं वो केमिकल म्यूटेंट आरएनए शेप के थ्रू। शेप यहाँ पे है सिलेक्टिव 2-हाइड्रोक्सिल एसाइलेशन एनालाइज्ड बाय प्राइमर एक्सटेंशन टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, जो ये म्यूटेंट आरएनए होते हैं इनको एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, और वो केमिकल रिएजेंट है एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्राइड। क्या है, एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्राइड। इसके साथ जब
ट्रीट करते हैं म्यूटेंट आरएनए को, तो क्या क्रिएट होता है, जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, एसिटाइल हो जाता है, एसिटाइलेट हो जाता है, जो अनपेयर कर जाता है। अब जो इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब वो पेयरिंग कर रखा होगा, बेस पेयरिंग हो रखी होगी वहाँ पे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो रहे होंगे, तो एसिटाइलेशन की वजह से वो अनपेयर्ड हो जाएंगे वो बेस पेयर। तो जो पोजीशन है अनपेयर न्यूक्लियोटाइड की वो डिटरमाइन कर दी जाएगी प्राइमर एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के थ्रू। फिर क्या कर दी जाएगी, प्राइमर एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के थ्रू वो अनपेयर न्यूक्लियोटाइड क्या कर दिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा। कैसे कर लिया जाएगा, जो प्राइमर एक्सटेंशन स्ट्रेटजी होती है, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, डीएनए प्राइमर्स को इलोंगेट किया जाता है, या आरएनए प्राइमर्स को इलोंगेट किया जाता है, डीएनए प्राइमर्स को इलोंगेट किया जाता है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए प्राइमर को ही इलोंगेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वो क्या देगा, आरएनए। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो सीज कर देगा इलोंगेशन को जब वो एक केमिकल मॉडिफिकेशन को एनकाउंटर करेगा आरएनए चेन में। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे जब एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्रेट के थ्रू जो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एसिटाइल हो गया, तो केमिकली मॉडिफाइड हो गया है। तब जब यहाँ पे आरएनए प्राइमर को यूज़ करेंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब यूज़ होगा तो यहाँ पे इलोंगेशन सीज कर दी जाएगी बाय डिटेक्टिंग दिस एसिटाइल मॉडिफिकेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन। सो जो पोजीशन है केमिकल मॉडिफिकेशन की वो डिटरमाइन कर ली जाएगी प्राइमर एक्सटेंशन प्रोडक्ट के थ्रू कि कहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है। और इस बात का पता चल गया कि कहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हुई, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बेस जो हैं वो अनपेयर्ड हुए हैं। तो जो ये म्यूटेट और मैप स्ट्रेटजी है ये रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियोटाइड को जो अनपेयर्ड हुए हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन इन द कंप्लीमेंट्री मेंबर ऑफ बेस पेयर। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट nucleotide substitution method in combination with chemical probing in which we used a chemical डेट इज़ एन मिथाइल आइसोटोइक एनहाइड्रेट जो एसिटाइलेट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और ये प्रिडिक्ट करता है आरएनए स्ट्रक्चर को बाय मॉडिफाइंग दैट पर्टिकुलर बेस। अब वो मॉडिफाई कर देता है तो वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो इलोंगेशन नहीं कर पाता, इस वजह से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन से बेस पेयर पे आरएनए मॉडिफिकेशन हुई है। Now come to our next point, that is directed evolution select RNA that binds small molecules। तो जो रिसर्चर हैं उन्होंने एडवांटेज ली आरएनए स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की और बहुत सारे नोवल आरएनए स्पीसीज को जनरेट किया। और वो जो नोवल आरएनए स्पीसीज थी वो जो नेचर में आरएनए मिलता था उनसे ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स थे। तो उनकी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि उसके थ्रू डिजाइबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया गया आरएनए की, डेट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्टेड इवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड इवोल्यूशन, डेट इज सेलेक्स। सेलेक्स हेयर स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इवोल्यूशन, सेलेक्स स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर सिलेक्टेड, ई स्टैंड फॉर इवोल्यूशन ऑफ, एल स्टैंड फॉर ligands, बाय ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल और enrichment। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ ligands बाय एक्सपोनेंशियल enrichment। इसके थ्रू क्या किया जाता है, सिंथेसाइज करे जाते हैं आरएनए मॉलिक्यूल रैंडम सीक्वेंसिंग के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत सारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मिक्सचर जनरेट किए जाते हैं। और वो जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मिक्सचर जनरेट किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीक्वेंस डाइवर्सिटी मिलती है। अगर हम रैंडमाइज सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करें तो उस आरएनए मॉलिक्यूल से हम एक मिक्सचर क्रिएट कर पाएंगे, और वो मिक्सचर किसका होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का, और उस मिक्सचर में बहुत ज़्यादा सीक्वेंस डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जिसकी लेंथ है अबाउट 20, और जैसे कि हमें पता है कि 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं आरएनए में, ए, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, तो 4 होते हैं। तो वो 4 20 टाइम्स क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 4 पावर 20 मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी। तो क्या नीड है
जनरेट करने की इस मिक्सचर को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो इसकी ज़रूरत है आरएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करने के लिए। आरएनए मॉलिक्यूल टू सिलेक्ट आरएनए मॉलिक्यूल बायोकेमिकली दैट हैव ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इसके थ्रू हम एक आरएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करते हैं जिसकी एक बायोमोलिकुलर प्रॉपर्टी होती है। वो बायोमोलिकुलर प्रॉपर्टी ये है कि उस आरएनए मॉलिक्यूल की एफिनिटी होगी किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए। वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है, टॉक्सिन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेल भी हो सकती है, कोई पेप्टाइड चेन भी हो सकती है। तो वो कुछ भी हो सकता है वो मॉलिक्यूल जिसके प्रति आरएनए क्या शो करेगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो जो आरएनए है जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम एप्टामर बोलते हैं। एप्टामर जो यहाँ पे लाइगेंड होंगे, जिसके लाइगेंड जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। एटीपी भी हो सकता है, कैनामाइसिन भी हो सकते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कैनामाइसिन भी हो सकती है, हमारी एटीपी भी हो सकती है, कोएगुलेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, फैक्टर लाइक X11A, और प्रियोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। प्रियोन प्रोटीन्स को यहाँ पे बोला गया है PRP, प्रियोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और साइनोकोबाल अमाइंस भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लाइगेंड हो सकते हैं। तो एक ये जो सेलेक्स है, ये क्लेवर स्ट्रेटजी है बेस्ड ऑन राउंड ऑफ सेलेक्स जो प्रोड्यूस करती है अनदर एग्जाम्पल ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल जिसकी हायर एफिनिटी होती है फ्लोरोफोर्स के थ्रू। मीन्स जैसे बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट होती है, ऐसे ही एक फ्लोरोफोर क्रिएट किया जाता है जिसमें वो कलर देता है आरएनए मॉलिक्यूल। तो वो भी वो एक हायर आरएनए मॉलिक्यूल हायर एफिनिटी शो करते हैं फ्लोरोफोर के लिए। अगर हम रैंडमाइज सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करें तो उस आरएनए मॉलिक्यूल से हम एक मिक्सचर क्रिएट कर पाएंगे, और वो मिक्सचर किसका होगा? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का। और उस मिक्सचर में बहुत ज़्यादा सीक्वेंस डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जिसकी लेंथ है अबाउट 20। और जैसे कि हमें पता है कि 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं आरएनए में, ए, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो 4 होते हैं, तो वो 20 टाइम्स क्या करेंगे? वो रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 4 पावर 20 मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी। तो क्या नीड है जनरेट करने की इस मिक्सचर को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है? तो इसकी ज़रूरत है आरएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करने के लिए। आरएनए मॉलिक्यूल टू सिलेक्ट आरएनए मॉलिक्यूल बायोकेमिकली दैट हैव ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इसके थ्रू हम एक आरएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करते हैं जिसकी एक बायोमोलिकुलर प्रॉपर्टी होती है। वो बायोमोलिकुलर प्रॉपर्टी ये है कि उस आरएनए मॉलिक्यूल की एफिनिटी होगी किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए। वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है, टॉक्सिन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेल भी हो सकती है, कोई पेप्टाइड चेन भी हो सकती है। तो वो कुछ भी हो सकता है वो मॉलिक्यूल जिसके प्रति आरएनए क्या शो करेगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो जो आरएनए है जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम एप्टामर बोलते हैं। एप्टामर जो यहाँ पे लाइगेंड होंगे, जिसके लाइगेंड जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। एटीपी भी हो सकता है, कैनामाइसिन भी हो सकते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कैनामाइसिन भी हो सकती है, हमारी एटीपी भी हो सकती है, कोएगुलेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, फैक्टर लाइक X11A, और प्रियोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। प्रियोन प्रोटीन्स को यहाँ पे बोला गया है PRP, प्रियोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और साइनोकोबाल अमाइंस भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लाइगेंड हो सकते हैं। तो एक ये जो सेलेक्स है, ये क्लेवर स्ट्रेटजी है बेस्ड ऑन राउंड ऑफ सेलेक्स जो प्रोड्यूस करती है अनदर एग्जाम्पल ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल जिसकी हायर एफिनिटी होती है
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि वो जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी लाइगेंड के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग के थ्रू, जैसे कि वो बॉन्डिंग करते हैं, 3 डायमेंशनल शेप डिपेंडेंट होती है वो बॉन्डिंग और बाइंडिंग, वो जिस लाइगेंड के साथ वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें 3 डायमेंशनल शेप जो होती है उनकी, तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से क्या होती है, बाइंड कर पाते हैं ये आरएनए मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर लाइगेंड से। तो ये जो बाइंडिंग होती है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू भी हो सकती है, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के थ्रू भी हो सकती है, इंटरकैलेशन के थ्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये एप्टामर है ये क्या होते हैं, एप्टामर कॉइन किए गए थे, कॉइंड बाय एंडी एलिंगटन के थ्रू ये टर्म्स एप्टामर कॉइंड की गई थी। ये एप्टामर डीएनए सीक्वेंस भी हो सकते हैं और आरएनए सेगमेंट भी हो सकते हैं, बट वो क्या होने चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड होने चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। तो ये क्या है, ये सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं अपने स्पेसिफिक टारगेट से। टारगेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बात की कि वो कैनामाइसिन भी हो सकता है, प्रोटीन भी, पेप्टाइड भी, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कोई टॉक्सिन भी हो सकता है, और वो लाइव सेल भी हो सकती है। तो जो ये एप्टामर है ये वेराइटी ऑफ शेप्स क्रिएट कर लेते हैं ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म हेलिक्स और सिंगल स्टैंडर्ड लूप, जो सर्कुलर जो लूप फॉर्म करते हैं ये और हेलिक्स जो फॉर्म करते हैं उसके थ्रू इनकी टेंडेंसी होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेलेक्स प्रोसेस और डायरेक्टेड इवोल्यूशन प्रोसेस, जिसके थ्रू स्मॉल वो आरएनए सेलेक्ट करे जाते हैं, वो एप्टामर सेलेक्ट करे जाते हैं जो किसी स्मॉल मॉलिक्यूल और लाइगेंड से बाइंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आरएनए को क्या करेंगे, रैंडमाइज सीक्वेंस के थ्रू जनरेट करेंगे जिसमें बहुत सारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जनरेट होंगे, और वो जो जनरेट होंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शो करेंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक इवोल्यूशन है लाइगेंड का, ये सेलेक्स के थ्रू जो होता है ये यूज़ किया जाता है हाई एफिनिटी सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम ए लार्ज रैंडम सीक्वेंस पूल। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या है, आरएनए या डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट होंगे, जो किसी पर्टिकुलर लाइगेंड से जाके बाइंड हो जाएंगे, तो उनको क्या करते हैं, ये आइसोलेट करते हैं, जिनकी हाई एफिनिटी होती है किसी डिजायरेबल लाइगेंड के अगेंस्ट। मान लो कोई प्रोटीन लिया, या जैसे हम स्टडी करना चाहते हैं कि कैनामाइसिन से कितनी बाइंडिंग होती है, कौन से अमाइनो एसिड वाला आरएनए बाइंड करेगा, तो कैनामाइसिन हमने ले लिया एक लाइगेंड, तो हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सा स्ट्रैंड है आरएनए का, उन आरएनए स्ट्रैंड को और उन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो बाइंड होंगे कैनामाइसिन के साथ। सो ये जो सेलेक्स डिराइव्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको हम क्या करते हैं, एप्टामर, जिनकी एबिलिटी होती है इंटरेक्ट करने की और बाइंड करने की उनके टारगेट से बाय स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वो अपनी 3 डायमेंशनल शेप डिपेंडेंट मैनर में क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन के थ्रू अपने लाइगेंड से बाइंड करते हैं। इसलिए इनको हम कभी कभी इन एप्टामर्स को क्या बोलते हैं, केमिकल एंटीबॉडीज़ भी बोला जाता है। तो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सेलेक्स, जिसमें सबसे पहले आरएनए रैंडमाइज्ड सीक्वेंसिंग की जाएगी, उसके बाद वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट किया जाएगा जो किसी डिजायरेबल लाइगेंड के साथ बाइंड कर रहा है। मान लो हमने कोई टॉक्सिन ही लिया है तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो उसके अगेंस्ट कैसे कौन कौन से सीक्वेंस बाइंड होते हैं, और उन्हीं को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम जो पर्टिकुलर लाइगेंड लिया है उसके अगेंस्ट जो आरएनए बाइंड हो रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम उन आरएनए की रिकवरी कर लेंगे जिनकी हायर एफिनिटी है। So let us understand in detail. ये यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेस शो की गई है, ये 4 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट क्या है, जिसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लाइब्रेरी जनरेट की जाती है एंड डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और वो आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बाइंड नहीं करते पर्टिकुलर लाइगेंड के साथ। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए लाइब्रेरी क्रिएट की गई है और उसको ऐड किया गया है टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, और वो एफिनिटी डिपेंडेंट मैनर में स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करके हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है वो बाइंड कर जाएंगे अपने लाइगेंड से, और जो बाइंड नहीं करेंगे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप होता है इल्यूट करने का, इल्यूशन स्टेप जो होता है, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बाइंड नहीं हुए उनको इल्यूट करने का, उनको बाहर निकालने का। तो यहाँ पे इल्यूशन बफर है और जिनकी एफिनिटी है वो इल्यूट कर दिए गए हैं। थर्ड स्टेप है जो
बाइंड हो गए हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जिनकी हायर एफिनिटी है पर्टिकुलर टारगेट के अगेंस्ट और लाइगेंड के अगेंस्ट, उनको पीसीआर टेक्निक के थ्रू एम्पलीफाई किया जाता है। फिर दोबारा से यही प्रोसेस फर्स्ट स्टेप टू थर्ड स्टेप दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है और उसके बाद इनरिच्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो पूल है जिसकी हायर एफिनिटी होती है उस पर्टिकुलर लाइगेंड के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हम उसको स्टडी करें, कैनामाइसिन भी हो सकता है, वो कोई टॉक्सिन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेल भी हो सकती है, उनको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। So this was about cell X. Now we are going to discuss about properties of RNA. First is our RNA that act as an enzyme. Second is RNA that store information, and third one is RNA that act as a regulator molecule. So let us understand how does this RNA act as an enzyme. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम वो जो बाइंड कर जाए किसी सबस्ट्रेट से और कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करे, और क्या करे, जब वो केमिकल रिएक्शन हो तो एक प्रोडक्ट जनरेट करे। और ये जो मैकेनिज्म है कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है, एंजाइम कोई प्रोटीन भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे कोफैक्टर्स भी बाइंड हो सकते हैं, और कोफैक्टर मेटल भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ विटामिन भी हो सकते हैं। तो जो एंजाइम है जो वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट जनरेट करता है, ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करती रहती है, तो उनका जो टर्नओवर नंबर है वो ज़्यादा होता है। तो जब पहले स्टडी की गई तो प्रोटीन वॉज स्टडीज and introduced or discovered that they are the perfect to function as an enzyme, क्योंकि उनमें एक कैपेबिलिटी थी डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड को कंपोज करने की। क्योंकि हमें पता है कि एक जब प्रोटीन चेन बनती है तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड कोड होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के थे, तो उन अमाइनो एसिड का डिफरेंट रोल था और वो डिफरेंट सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो सकते थे और वो फोल्ड होके एक कॉम्प्लेक्स टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते थे। बट अब जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि आरएनए भी अडोप्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स टर्शरी स्ट्रक्चर और वो परफॉर्म करता है एक फंक्शन एज एन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की फॉर्म में। तो ऐसे जो आरएनए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ऐसे आरएनए एंजाइम्स को हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। इनका फीचर क्या होता है राइबोजाइम्स का? इनमें एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जो किससे बाइंड हो जाती है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती है। एक एक्टिव साइट होती है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है और एक बाइंडिंग साइट होती है कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। और जो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल लेंगे राइबोजाइम आरएनएज पी का। आरएनएज पी, जो आरएनएज पी की मैं बात कर रही हूँ, आरएनएज पी हमारा पहला राइबोजाइम था जो डिस्कवर किया गया था। और ये क्या है? एक एंडोराइबोन्यूक्लियस है जो जनरेट करता है ट्रांसफ़र आरएनए को। जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है, वो ट्रांसफ़र आरएनए को जनरेट करता है बाय क्लीविंग। वो क्लीव कर देता है जो लार्ज प्रिकर्सर आरएनए होता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है प्री टीआरएनए। तो ये लार्ज प्री टीआरएनए है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद जब पहला आरएनए फॉर्म होता है तो उसको प्री आरएनए बोलते हैं, चाहे वो प्री एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो। तो यहाँ पे प्री टीआरएनए है जो जस्ट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म हुआ है, वो लार्ज है और उसका यहाँ पे क्लीवेज कर दिया है यहाँ पे आरएनएज पी ने, जो कि एक एंडोराइबोन्यूक्लियस है। एंडोराइबोन्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो आरएनएज पी एक्ट कर रहा है वो एज ए कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है और आरएनएज पी जो है वो फॉर्म किया गया है आरएनए और प्रोटीन के थ्रू। तो आरएनएज पी की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आरएनए जो कैटालिस्ट की फॉर्म में एक्ट करता है, दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? जैसे ये आरएनए चेन है तो आरएनए चेन में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि फॉस्फेट जो बॉन्ड बना रखे होते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है दो बॉन्ड बनाने की, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इस वजह से वहाँ पे फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जो ये प्रोटीन होता है ये शील्ड कर देता है उस नेगेटिव चार्ज को। तो ईजिली जो आरएनए
टी-आर-एन-एस-पी होता है वो ईजिली बाइंड कर जाता है प्री टी-आर-एन-ए पे और उसका क्लीवेज कर देता है। तो अगर यहाँ पे ये प्रोटीन अब्सेंट भी होता है आर-एन-एस-पी में, तब भी आर-एन-एस-पी जो है वो ईजिली क्लीव कर सकता है इस प्री टी-आर-एन-ए को, अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन प्रेजेंट हो in place of negatively charged binding protein that is present inside the RNase-P। अगर RNase-P में जो नेगेटिव चार्ज को शील्ड करने वाला जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो अब्सेंट भी होगा, तब भी RNase-P क्या कर सकता है, क्लीव कर सकता है इस प्री mRNA को इन द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन। और ये पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड स्पर्मिडिन। ये शील्ड कर देगा रिपल्सिव नेगेटिव चार्ज को, जिसकी वजह से ये कैटेलाइज करेगा क्लीवेज किसका, टी-आर-एन-ए का, और हमें मैच्योर टी-आर-एन-ए मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो शो किया गया है क्लीव्ड पार्ट शो किया गया है। और जो ये ट्रांसफ़र आर-एन-ए होता है, टी-आर-एन-ए होता है, ये फोल्ड हो जाता है एल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर में, और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टर्मिनी के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है इस डायग्राम में। ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म किया गया टी-आर-एन-ए की फोल्डिंग के थ्रू, जो कि एल शेप्ड लाइक फोल्डिंग है। और ये फोल्डिंग कैसे हुई, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, जो 3 प्राइम और 5 प्राइम है वो एक ही टर्मिनल पे प्रेजेंट है। और जो क्रिस्टल, और ये जो पिक्चर है ये शो करिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर-एन-एस-पी का, जो रिवेल करती है साइट क्लीवेज साइट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, जो कैटालिटिक सेंटर में प्रेजेंट है आर-एन-एस-पी और आर-एन-ए मोइटी की। और जो यहाँ पे आर-एन-ए मोइटी है वो पर्पल, ये हमारा आर-एन-ए ये पर्पल कलर में शो किया गया है, और यहाँ पे ये हमारी कैटालिटिक मोइटी शो की गई है, जहाँ पे आर-एन-एस-पी बाउंड कर रहा है आर-एन-ए के साथ। और यहाँ पे जो प्रोटीन मोइटी है, जो जैसे कि मैंने बोला कि आर-एन-एस-पी है वो आर-एन-ए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो जो प्रोटीन मोइटी है वो शो की गई है ब्लू कलर में। और यहाँ पे जो येलो कलर में शो किया गया है वो टी-आर-एन-ए शो किया गया है, जिसका क्लीवेज हो रहा है और जिसको क्लीव किया जा रहा है इस आर-एन-ए के थ्रू, जो आर-एन-ए और प्रोटीन के बाउंड होके बना है यहाँ पे आर-एन-एस-पी, जो कि एज ए कैटालिस्ट एक्ट करेगा। और यहाँ पे जो ये रेड डॉट शो की गई हैं ये शो किया गया मेटल आयन, जो कि कैटालिटिक सेंटर में बाउंड होंगी और उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगी, किसकी, एंजाइम की। और यहाँ पे एंजाइम कौन है, एक आर-एन-ए मॉलिक्यूल है और वो है आर-एन-एस-पी। यहाँ पे जो शो किया गया है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो किया गया है आर-एन-एस-पी का। यहाँ पे जो शो किया गया है वो शो किया गया है कि कैसे वो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम एक टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आर-एन-एस-पी का मैकेनिज्म शो किया गया है कि वो प्री टी-आर-एन-ए को क्लीव कर देता है 5 प्राइम साइड से। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं आर-एन-ए की, जो दो मैकेनिज्म कंसिस्ट करता है। एक एज ए राइबोजाइम, मीन्स वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, दूसरा ए राइबोस्विच की तरह एक्ट करता है। राइबोस्विच क्या करता है, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, मीन्स किसी जीन के ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है बाय कवरिंग अप राइबोसोम बाइंडिंग साइट और बाय ओपनिंग अप राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसकी वजह से राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे बाइंड होकर ट्रांसलेशन करता है। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो राइबोस्विच के थ्रू किया गया है। तो अभी हम एक आर-एन-ए मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे जो राइबोजाइम की तरह भी एक्ट करता है और राइबोस्विच की तरह भी एक्ट करता है, मीन्स वो एक एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है और वो ट्रांसलेशन को भी रेगुलेट करता है किसी पर्टिकुलर जीन की। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी आर-एन-ए मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर जाएगा और रिस्पोंड करेगा किसी स्मॉल मॉलिक्यूल से, जो कि राइबोस्विच होगा। राइबोस्विच की एक फीचर होता है कि वो किसी स्मॉल लाइगेंड के अगेंस्ट और उसके रिस्पॉन्स में ही वो एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आर-एन-ए मॉलिक्यूल है जो राइबोस्विच की फॉर्म में प्रेजेंट है वो बाइंड करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा किसी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइगेंड से एंड कंट्रोल करेगा जीन के ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को। और ये मेटाबोलाइट जिनसे राइबोस्विच बाइंड करता है और लाइगेंड, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये अमाइनो एसिड लाइसिन भी हो सकता है,
लाइसिन भी हो सकता है, न्यूक्लियोबेस लाइक ग्वानिन भी हो सकता है, एंजाइम कोफैक्टर कोएंजाइम B12 भी हो सकता है, मेटाबोलाइट ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल और लाइगेंड और मेटाबोलाइट। और जो ये आरएनए है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो राइबोजाइम और राइबोस्विच दोनों तरह से एक्ट करेगा, ये पाया जाता है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में एक एमआरएनए के फॉर द प्रोटीन एंजाइम डेट कोड फॉर द प्रोटीन एंजाइम GLMS। और ये कैटालाइज करता है सिंथेसिस किसकी, एक ये जो यहाँ पे एंजाइम है GLMS जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रेजेंट होता है ये आरएनए, जो एक राइबोजाइम की तरह भी एक्ट करता है और राइबोस्विच की तरह भी एक्ट करता है। ये जब इस एंजाइम की GLMS की सिंथेसिस करता है तो ये एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है सिंथेसिस एक मेटाबोलाइट की, और वो मेटाबोलाइट होता है ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट। और ये जो ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट है यहाँ पे, ये जब इसका लेवल हाई होता है तो mRNA डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड कर देता है सिंथेसिस किसकी, मेटाबोलाइट की। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आरएनए की, वो आरएनए प्रेजेंट है उस एमआरएनए में जो कोड कर रहा है एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, और वो प्रोटीन बाद में एक एंजाइम फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक एमआरएनए प्रेजेंट है और इसकी 5 प्राइम सब यूनिट में यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है, और इस अनट्रांसलेटेड रीजन में एक आरएनए प्रेजेंट है, जो आरएनए यहाँ पे राइबोजाइम की तरह भी एक्ट कर रहा है और राइबोस्विच की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये mRNA एक प्रोटीन को कोड करेगा और वो प्रोटीन बाद में जाके एक एंजाइम सिंथेसाइज करेगा, वो एंजाइम होता है GLMS। और जो ये GLMS है ये एक मेटाबोलाइट को सिंथेसाइज करता है। GLMS जो है वो एक मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करता है जो कि ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट है। तो ये जो यहाँ पे राइबोजाइम की तरह भी जो 5 अनट्रांसलेटेड रीजन में जो आरएनए राइबोजाइम की तरह एक्ट कर रहा होगा, वो डिग्रेड कर देगा एमआरएनए को, इस एमआरएनए को अपने ही एमआरएनए को क्लीव कर देगा और डिग्रेड कर देगा, जो कोड करेगा GLMS के लिए और इनकोड करेगा उस प्रोटीन के लिए जो फॉर्म करेगा GLMS। तो यहाँ पे जो GLMS है वो उसकी यहाँ पे एक अनदर मैकेनिज्म कंडक्ट होगा जो कि इसी आरएनए के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि ये आरएनए यहाँ पे तो जब ये डिग्रेड कर रहा है GLMS की सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग और बाय डिग्रेडिंग द mRNA, ये एक अनदर मैकेनिज्म के थ्रू भी यहाँ पे ये अनट्रांसलेटेड रीजन में जो mRNA है वो अनदर मैकेनिज्म भी परफॉर्म करता है। वो करता है एज ए राइबोजाइम, जहाँ पे जो ये GLMS है इसकी सिंथेसिस के थ्रू एक मेटाबोलाइट क्रिएट हुआ है, उससे बाइंड करके ये आरएनए एज ए राइबोस्विच भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है इस mRNA में, वहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन में जो आरएनए प्रेजेंट है वो रेगुलेट भी कर रहा है एंजाइम की सिंथेसिस और एंजाइम को डिग्रेड भी कर रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि वो उसकी सिंथेसिस भी कर रहा है और उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अनट्रांसलेटेड रीजन में जो आरएनए प्रेजेंट है उसके दो फंक्शन है। एक तो जो ये GLMS एंजाइम सिंथेसाइज करेगा मेटाबोलाइट, उससे बाइंड कर जाएगा। दूसरा है एज ए राइबोजाइम और एंजाइम जो डिग्रेड करेगा इस mRNA को और क्लीव करेगा इस mRNA को। तो यहाँ पे जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, यहाँ पे जो आरएनए प्रेजेंट है उसके दो फंक्शन है, तो वो रेगुलेट कर रहा है इस मैकेनिज्म को। अदर राइबोजाइम होते हैं वो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमने आरएनए स्प्लाइसिस में स्टडी की थी, और इंट्रोन्स को कट डाउन कर देते हैं।
अनदर एग्जाम्पल है कि कैसे ये जो आरएनए होता है वो एज ए एंजाइम एक्ट करता है और एज ए राइबोजाइम एक्ट करता है, वो है द हैमर हेड राइबोजाइम, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। हैमर हेड राइबोजाइम डेट क्लीव्ड आरएनए बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट। और वो कैसे क्लीव करता है, अपने ही उसी आरएनए को जिससे वो फॉर्म हुआ है, वो क्लीव करता है 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्मेशन की हेल्प से। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। जो हैमर हेड है वो एक हैमर हेड राइबोजाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? हैमर हेड राइबोजाइम की बात कर रहे हैं। और जो हैमर हेड राइबोजाइम है वो एक सीक्वेंस स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियस है डेट इज़ फाउंड इन सर्टेन इन्फेक्शियस आरएनए एजेंट ऑफ प्लांट, जैसे वायरॉइड्स में मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? वायरॉइड्स में। जब वायरॉइड रेप्लिकेट करता है तो वो क्या करता है? बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करता है अपनी एक कॉन्टिन्यूस आरएनए चेन में। एक ही आरएनए चेन में बहुत सारी कॉपी क्रिएट करता है, फिर वो कॉपी क्लीव कर दी जाती हैं किसके थ्रू? एक स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस के अराउंड वो क्लीव कर देता है उनको। और ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हैमर हेड कहते हैं। जिन सीक्वेंस के अराउंड वायरॉइड अपने अलग अलग जो रेप्लिका है उनको क्लीव करता है, उनको हम कहते हैं हैमर हेड। बिकॉज जो शेप होती है इस आरएनए की और इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, उसमें 3 बेस पेयर्ड होते हैं। स्टेम 1, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया, स्टेम 1, स्टेम 2 एंड स्टेम 3। ये सराउंड करते हैं एक कोर को जो कि नॉन कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है प्रेजेंट है, उस कोर को ये क्या करते हैं? सराउंड करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे क्लीवेज के लिए। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है C17। तो ये जो C17 है ये क्लीवेज रिएक्शन करता है और ये एक कैटालिटिक सेंटर क्रिएट करता है C70 साइटोसिन 17। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आरएनए का, हैमर हेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसमें जो साइटोसिन 17 यहाँ पे शो किया गया है वो एक कैटालिटिक सेंटर फॉर्म कर रहा है और क्लीवेज रिएक्शन ओक्योर होगी तो वो यहीं पे होगी साइटोसिन 17 में। ये जो हैमर हेड स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि कैटालिटिक सेंटर यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट है इन तीनों स्टेम्स का, स्टेम फर्स्ट का, स्टेम सेकंड एंड स्टेम 3 का। और जंक्शन कहाँ है? C17 डायगोनल बॉन्ड पेयर के थ्रू। और G8 जो यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? कैटालिटिक सेंटर क्रिएट कर रहे हैं और यहीं पे क्या होगा? क्लीवेज होगा। और ये हमने एग्जांपल लिया वायरॉइड्स में, जैसे प्लांट्स में वो रेप्लिकेट हो जाता है एक सिंगल mRNA चेन में और उसका क्लीवेज करता है बाय सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। और ये जो सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है इसके अराउंड ही एक कैटालिटिक सेंटर क्रिएट होता है, जैसे कि इस फॉर्म में हम देख सकते हैं C17 यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन सेंटर फॉर्म कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस हैमर हेड वर्क। तो इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि आरएनए में कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है ड्यूरिंग एल्कलाइन कंडीशन। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जब हाई पीएच होता है तो आरएनए में जो सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन्स जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जो कि राइबोस पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उस पर जाके वो अटैक कर देती है फॉस्फेट ग्रुप पे, जिसकी वजह से क्या होता है? 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट होता है एंड एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट फॉर्म होता है। और ये जो रिएक्शन है ये हर एक राइबोस के थ्रू परफॉर्म की जाती है, जितने भी राइबोस प्रेजेंट होती है mRNA चेन में, जिसकी वजह से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जनरेट होते हैं और आरएनए चेन ब्रेक डाउन हो जाती है। सेम मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है राइबोन्यूक्लियेसिस के थ्रू। किन के थ्रू? राइबोन्यूक्लियेसिस के थ्रू। वे भी इसी मैकेनिज्म से क्लीव करते हैं अपने आरएनए सबस्ट्रेट को। किस मैकेनिज्म से? बाय फॉर्मेशन ऑफ 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट। और ये जो करते हैं एक्ट, तो ये नॉर्मल सेलुलर पीएच पे एक्ट करते हैं। और ये किसको यूज़ करते हैं? ये राइबोन्यूक्लियस एक मेटल आयन को यूज़ करते हैं बाय बाइंडिंग टू देयर एक्टिव साइट, क्योंकि जो राइबोन्यूक्लियस उसमें एक एक्टिव साइट होती है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है और एक उनमें कैटालिटिक सेंटर होता है। तो ये एक्टिवेट करते हैं 2
हाइड्रोक्सिल आरएनए फॉर्मेशन। सिमिलरली जो हैमर हेड राइबोजाइम है वो क्लीव करता है आरएनए को बाय फॉर्मेशन ऑफ 2,3 साइक्लिक फोस्फेट एंड जो साइक्लिक फोस्फेट। जो ये हैमर हेड होता है ये एक कैटालिस्ट नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो हैमर हेड है उसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो एक ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एट ए टाइम। तो इसका जो टर्न ओवर नंबर है, टर्न ओवर नंबर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जिसका टर्न ओवर नंबर 1 होता है वो एंजाइम नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम तो बार बार सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, बार बार रिएक्शन करेगा। तो हैमर हेड बस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो hammer head can be engineered to function as a true ribozyme by dividing the molecule into 2 portion। तो कैसे इसको राइबोजाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके मॉलिक्यूल को 2 पोर्शन में डिवाइड करके। फर्स्ट है राइबोजाइम जो कंटेन करेगा एक कैटालिटिक कोर और कैटालाइटिक सेंटर क्रिएट करेगा, और दूसरा होगा सबस्ट्रेट दैट कंटेन एक क्लीवेज साइट जो बाइंड हो जाएगा राइबोजाइम से एट स्टेम फर्स्ट एंड स्टेम थर्ड, जो स्टेम फर्स्ट और स्टेम थर्ड पे जाके बाइंड हो जाएगा। और क्लीवेज होने के बाद सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएगा और रिप्लेस कर देगा एक फ्रेश और अनकट सबस्ट्रेट को, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होती जाएगी। और हैमर हेड जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, हैमर हेड एक एंजाइम की तरह और एक राइबोजाइम की तरह वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये शो कर रही है कि C17 हमारा क्या है, क्लीवेज साइट क्रिएट कर रहा है। ये शो कर रहा है वास्टन क्रिक बेस पेयर इंटरेक्शन, और ये सिजाइल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है C17 डायगोनल लाइन में इंट्राहेलिकल इंट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है जो बॉन्डिंग के थ्रू जब ये क्वास्टन क्रिंक्ड बॉन्डिंग के थ्रू जब ये सिजाइल बॉन्ड डायगोनल लाइन में जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, इंट्राहेलिकल इंट्रैक्शन। अभी तक हमने जितने भी राइबोजाइम को स्टडी किया, मींस आरएनए को स्टडी किया, जो एक्ट करते हैं एज एन एंजाइम, उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो वो फॉस्फोरस को एज ए सेंटर मान के काम करते हैं। बट अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि राइबोजाइम ऐसे भी राइबोजाइम होते हैं जो कार्बन को एज ए कैटालिटिक सेंटर क्रिएट करके काम करते हैं। और ये एग्जाम्पल है राइबोसोम में। राइबोसोम में डिफरेंट सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं लार्ज सब यूनिट में, जैसे कि हमें पता है ट्रांसलेशन के टाइम पे लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट बाइंड होती है। यहाँ पे हमारी होती है एमाइनो असाइल सब यूनिट, फिर होती है हमारी पेप्टिडाइल, फिर होती है हमारी एग्जिट। तो जो ये पेप्टिडाइल होती है ये एज ए स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है राइबोसोम का, बट ये एज ए पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज भी काम करती है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एज ए राइबोजाइम ये यहाँ पे ट्रांसफेरेज एज ए ये यहाँ पे एक्ट करिए एज ए राइबोजाइम और एज ए एंजाइम बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो ये राइबोजाइम है और जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है ये कार्बन को एज ए सेंटर मान के काम कर रहा है, ना कि फॉस्फोरस को सेंटर लेके। तो यहाँ सो नाउ वी गेट क्लियर हाउ डज दिस आरएनए परफॉर्म एज एन एंजाइम और एज ए राइबोजाइम। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आरएनए इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जैसे कि हमें पता है कि आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है कि आरएनए में तो यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है आरएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पर डीएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसी वजह से पर जो आरएनए है वो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कैसे, कोड की फॉर्म में अमाइनो एसिड कोडिंग करता है। जैसे एम मैसेंजर आरएनए उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है ना। जब तक वो कोडिंग नहीं करता और कोडोन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता राइबोजाइम तक, तब तक तो वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। पर बट आरएनए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है उसकी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि एक तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड पोजिशन पर, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। दूसरा है जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो ब्रोक डाउन कर दिया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोटाइड में। जैसे कि अब हमने बात की, जैसे आरएनए पी की मैंने बात की, वायरोइड्स में होता है, तो वो अपने ही एमआरएनए चेन को डिग्रेड कर देता है आफ्टर रेप्लिकेशन। तो बहुत सारे जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो राइबोजाइम एक्ट करते हैं और वो क्लीव कर देते हैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूंट को न्यूक्लियोटाइड्स में, तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जैसे पीएच चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा उस टाइम पे। तो ये, और दूसरा ये
है कि लिमिटेशन ये है कि आरएनए जो हैं उनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, और स्प्लाइसिंग के टाइम पे मान लो कोई इंट्रोन एडिशन हो गया और एक्सोन एक्सटेंशन हो गया जिसमें थोड़ा सा पार्ट इंट्रोन का इंक्लूड हो जाता है, तो उनमें म्यूटेशन प्रोन होते हैं ये। तो ये जो लिमिटेशन है ये यूज़फुल नहीं बनाती आरएनए को टू स्टोर इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आरएनए एज ए रेगुलेटर और एज ए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। आरएनए ए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में मैंने बात की है जब मैंने प्रोकैरियोट्स के रेगुलेशन के बारे में बात की, और जब मैं यूकैरियोटिक रेगुलेशन के बारे में बात करूँगी तब मैं वहाँ पे बात करूँगी कि यूकैरियोट्स के केस में कौन कौन से आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और क्या मैकेनिज्म होता है उनका रेगुलेशन में, जब वो रेगुलेट करते हैं किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को। तो जब रेगुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही है जीन रेगुलेशन की। जीन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे है कि जो ये एक एबिलिटी है जिसके थ्रू एक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। मीन्स उस जीन को या तो एक्सप्रेस कराया जा रहा है या फिर उसको सुप्रेस किया जा रहा है। तो ये कंट्रोल और इस एक्सप्रेशन की वजह से और इस जीन के रेगुलेशन की वजह से और इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की वजह से सेलुलर और मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। और जब ये मेटाबॉलिक और सेलुलर प्रोसेस कंट्रोल की जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं और वेरिएशन लेके आती हैं किसमें, ऑर्गेनिजम्स में। और ये जो जीन रेगुलेशन है जिसके थ्रू किसी जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस किया जाता है और इन्हेंस किया जाता है उसके एक्सप्रेशन को, ये डिटरमाइन करता है सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑल्सो एंड मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस होता है मोर्फोलॉजी फॉर्म होना, और सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है कि जब एक सेल है, जैसे हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में डिवाइड करती है। उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म होती हैं, बहुत सारी ग्रेनुलोसाइट्स फॉर्म होती हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं वो होते हैं आरएनए। आरएनए दैट यूटिलाइज टू कंट्रोल जीन रेगुलेशन आर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल आरएनए, माइक्रो आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। तो मेन रोल यहाँ पे एंटीसेंस आरएनए का है। वो है ये जो एंटीसेंस आरएनए होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती हैं जो बाइंड कर देते हैं और इनहिबिट करते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए के ट्रांसलेशन को, जब ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये जो एंटीसेंस आरएनए है स्पेसिफिकली बाइंड करेंगे अपने टारगेट मॉलिक्यूल से जो यूज़ किया जा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। तो एंटीसेंस आरएनए बाइंड और पेयर कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री एमआरएनए के साथ, जिसकी बाय इनहिबिटिंग द एबिलिटी ऑफ एमआरएनए टू प्रोसेस इन ए ट्रांसलेशन मशीनरी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स की स्टडी करेंगे जो रेगुलेटरी आरएनए परफॉर्म करते हैं, जैसे रोल ऑफ एंटीसेंस आरएनए इन ई कोलाई आरआई प्लाज्मिड दैट यूज होक-शोक सिस्टम एंड सेकंड रेगुलेटरी आरएनए एक्ट एज ए एटेन्यूएटर। इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ ट्रिप ओपरॉन में। एंड एज ए राइबोजाइम कैसे राइबोस्विच कैसे एक्ट करते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, एंड हाउस कीपिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या हैं जो परफॉर्म करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। बहुत सारे नेचुरली ओक्योरिंग एंटीसेंस आरएनए होते हैं जो आइसोलेट किए गए हैं वेरियस माइक्रोब से, इंक्लूडिंग ई कोलाई आरआई प्लाज्मिड, जिसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, और आर फर्स्ट प्लाज्मिड। तो जो ये आर फर्स्ट प्लाज्मिड है ये यूज़ करता है एक होक-शोक सिस्टम को। ये मैकेनिज्म एम्प्लॉय किया जाता है ई कोलाई के थ्रू, जो यूज़ करता है पोस्ट सेग्रीगेशनल कीलिंग मैकेनिज्म, पोस्ट सेग्रीगेशनल कीलिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है आरएनए फर्स्ट प्लाज्मिड, ई कोलाई आरएनए 1 प्लाज्मिड डीएनए। यहाँ पे आरएनए फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए शो किया गया, इसमें होक जीन है, शोक जीन है। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या मैकेनिज्म होता है। ये जो होक जीन होता है इसके ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब होक एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो ये इनकोड करता है एक टॉक्सिक जीन को। किसको? एक टॉक्सिक जीन को ये इनकोड करता है। पर जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू सोक फॉर्म होता है तो सोक
जो है वो एंटीटॉक्सिन फॉर्म करता है, वो एंटीटॉक्सिन फॉर्म करता है। तो जो ई कोलाई है वो रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन होक का, दैट इज़ ए टॉक्सिन, एंड इनहिबिट करता है इसकी ट्रांसलेशन बाय प्रोड्यूसिंग सोक। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम वंस टाइम, और कहें तो एक टाइम जो होक ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, पर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रैपिड सोक ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि जो ई कोलाई है उसका एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो इनहिबिट करता है mRNA को, होक mRNA को बाय सिंथेसाइज सोक mRNA, जो कि एंटीटॉक्सिन है। जो सोक RNA होता है इसको हम एंटीसेंस RNA भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रेशन कर रहा है किसका, होक mRNA का रिप्रेशन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, एंटीसेंस mRNA कह रहे हैं। और जिसकी वजह से जब ये सोक mRNA जब इसको इनहिबिट करता है तो क्या होता है, एक डुप्लेक्स फॉर्म होता है, और वो डुप्लेक्स फॉर्म होने के बाद डिग्रेडेशन हो जाती है उस डुप्लेक्स mRNA की बाय RNase थर्ड, क्योंकि जो डुप्लेक्स mRNA होते हैं वो प्रोन होते हैं जिस पे बहुत सारे न्यूक्लियसेस आके बाइंड कर जाते हैं ईजिली। जैसे RNase 3 जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियस एंजाइम का एग्जाम्पल है, जो कि सोक और होक mRNA के डुप्लेक्स पे आके बाइंड हो गया है और उसका डिग्रेडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म शो किया गया है होक सोक सिस्टम का, डेट इज़ प्रेजेंट ई कोलाई RNA फर्स्ट प्लाज्मिड DNA, इट यूज एन एंटीसेंस RNA एज ए रेगुलेटरी मोलिक्यूल। यहाँ पे एंटीसेंस RNA क्या है, सोक है, SOK। अदर मैकेनिज्म है आरएनए का जो रेगुलेटर मोलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, वो है एटीन्यूएशन का। एटीन्यूएशन का मतलब ही, मीनिंग ही ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को वो रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो जैसे कि हमने ट्रिप्टोफैन में जब स्टडी किया था कि जब हमारा जो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है हाई लेवल में, उसके जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे जो आरएनए है, जो mRNA प्रेजेंट है और जो ओप्रोन में प्रेजेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है और उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो इनहिबिट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो एटीन्यूएशन प्रोसेस होती है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया ओप्रेन में यूज़ किया जाता है to ensure the proper transcription and translation process in the presence of a metabolite। तो यहाँ पे जो मेटाबोलाइट है ट्रिप्टोफैन में वो क्या है, ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन हाई लेवल में प्रेजेंट है तो जो ये mRNA चेन है इसने क्या फॉर्म कर लिया, एक स्टेम लूप और हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज बाउंड नहीं हो पा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो गया है। बट जब ट्रिप्टोफैन हमारा लो लेवल में प्रेजेंट है तो अल्टरनेट स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये एटीन्यूएटर है वो है mRNA बाय फॉर्मिंग इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये एक ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन होती है ये कैरेक्टराइज करी जाती है बाय प्रेजेंस ऑफ 5 प्राइम सिस एक्टिंग रेगुलेटरी रीजन। अगर ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन हो रही है तो वो 5 प्राइम सिस एक्टिंग रेगुलेटरी रीजन्स के थ्रू होती है, जो फोल्ड हो जाते हैं अल्टरनेटिव आरएनए स्ट्रक्चर में और टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। बट ट्रांसलेशन एटीन्यूएशन होती है वो होती है साइन डलगार्नो सीक्वेंस के थ्रू, साइन डलगार्नो सीक्वेंस के थ्रू। और ये बैक्टीरियल स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये इंडिकेट करता है साइट किसकी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट को इंडिकेट करता है ये साइन डलगार्नो सीक्वेंस, और ये अलो करता है प्रॉपर ट्रांसलेशन। पर जब एटीन्यूएशन होती है तो ये जो साइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसकी वजह से राइबोसोम असेस नहीं कर पाता इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट को और वो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर पाता। तो आरएनए सो नाउ वी गेट टू नो कि कैसे ये आरएनए मॉलिक्यूल एज ए एटेन्यूएटर वर्क करके कैसे रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को। लेट अस कम ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ राइबोस्विच, कि कैसे आरएनए राइबोस्विच सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करके रेगुलेट करते हैं
और वर्क करते हैं एज ए रेगुलेटरी मोलिक्यूल। तो यहाँ पे जो राइबोस्विच है वो पार्ट है किसका, mRNA मोलिक्यूल का, जो बाइंड करता है किसी स्पेसिफिक टारगेट मोलिक्यूल से और रेगुलेट करता है अपना ही एक्सप्रेशन बाय प्रोसेसिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स टारगेट मोलिक्यूल। तो जो ये राइबोस्विच होते हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट मोलिक्यूल, लाइगेंड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकता है, कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उनके रिस्पॉन्स में ही ये एक्ट करते हैं। तो जो इसका ये जो राइबोस्विच होता है प्लांट्स में भी मिलते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की फंगाई में भी मिलते हैं। तो इसका जो राइबोस्विच का जो स्ट्रक्चर है वो होता है एप्टामर एंड एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। जो एप्टामर होता है इसका वो बाइंड करता है टारगेट मोलिक्यूल के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे शो किया गया लाइगेंड ब्लू कलर में और एक राउंड बॉल की फॉर्म में, वो बाइंड कर रहा है एप्टामर से, क्योंकि जो एप्टामर है वो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है दैट इज प्रेजेंट इन द राइबोस्विच। और ये जो स्ट्रक्चर शो किया गया है राइबोस्विच का स्ट्रक्चर शो किया गया है। और सेकंड जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या होता है, जब लाइगेंड हमारा बाइंड हो जाता है तो एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से उस कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या होता है, कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे ये हमारा एप्टामर है, जब तक यहाँ पे कोई लाइगेंड बाइंड नहीं हो रहा तो कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हो रहा हमारे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में। तो जो एंटी टर्मिनेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद ट्रांसलेशन भी ईजिली हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शो किया गया है, यहाँ पे ट्रांसलेशन शो किया गया है। ये शो किया गया है कि कैसे स्विच है वो रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, पर जब लाइगेंड आके बाइंड कर जाता है एप्टामर से तो एक कन्फर्मेशनल चेंज क्रिएट होता है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से टर्मिनेटर फॉर्म होता है, ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर और एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बाय बेस पेयरिंग, बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑन द चेन विदिन द चेन ऑफ एन mRNA मोलिक्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पे यू वाला सीक्वेंस और स्टॉप सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है इनहिबिट हो जाएगा। और सेम ट्रांसलेशन प्रोसेस में होता है, यहाँ पे जब तक लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है तो जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो ओपन अप हो जाती है, जिससे राइबोसोम आके बाइंड हो जाता है और ट्रांसलेशन कर देता है। पर जब लाइगेंड आके एप्टामर साइड से बाइंड हो जाता है तो जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है, जिसकी वजह से वो कवर अप कर लेता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट को, और जिसकी वजह से राइबोसोम आके RBS पे बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। तो डिफरेंट रोल होते हैं राइबोजाइम के, राइबोस्विच के। राइबोस्विच एज ए राइबोजाइम भी एक्ट करता है बाय क्लीविंग इटसेल्फ। अगर कोई सफिशिएंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो किसी मेटाबोलाइट की तो ये अपने आप को ही क्लीव कर देते हैं बाय परफॉर्मिंग और बाय एक्ट लाइक एन एंजाइम दैट इज़ राइबोजाइम। और ये जो राइबोस्विच होते हैं वो फोल्ड कर देते हैं mRNA को, ताकि जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है RBS है वो उस पे आके वो राइबोसोम जो है वो बाइंड ना हो उसके और इनएसेसिबल कर देते हैं RBS को और प्रिवेंट कर देते हैं ट्रांसलेशन। और दूसरा मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे ये रोल परफॉर्म करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं स्प्लाइसिंग मशीनरी को ऑफ प्री mRNA मोलिक्यूल। नाउ कम टू आवर लास्ट पॉइंट दैट इज़ स्मॉल रेगुलेटरी RNAs। ये नॉन कोडिंग RNAs भी हो सकते हैं और इनका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, लाइक ये बाइंड कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन टारगेट से और जनरेट करते हैं अपना मैकेनिज्म और रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर जीन का, और ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं। अगर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो गई तो वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं फॉर्म कर पाएगा, अपने सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देंगे। ये बाइंड कर जाते हैं mRNA टारगेट से, जिसकी वजह से क्या होता है mRNA एक्सप्रेस नहीं कर पाता और ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये जीन को रेगुलेट करते हैं। So in this video I talked about structure and versatility of RNA and directed evolution that select RNA that bind to small molecule or ligand, and then I studied about properties of RNA, and in my next video I will talk about types of RNA. And if you like my video then please thumbs up, and if you have any query then please write in the description box given below, and please support me by subscribing to my channel. Thank you so much for watching my videos.